Hello everyone. In last lecture we have discussed the non-exact equation and integrating factor, how to find the sum of the integrating factor or the equation reducible into exact equation and the counting of the integrating factor. In this lecture we will continue with the sum of the question based on the non-exact or exact equation, and then the important concept for NetGRF, which is called first order first degree linear equation. This is also important for GATE and IIT. There will be at least one question from this section. So let's start with the one of the question. So if say m dx plus n dy equal to 0 be a non-exact equation, so this equation is say equation 1, and phi of xy be an integrating factor. So phi is a integrating factor. Then obviously phi into m dx plus n dy equal to 0 is exact equation, just by definition of the exact differential equation. Now consider a set A y, where y is a solution of equation 1. Okay. सारे solutions का collection है for first equation, which is non-exact equation. And another set say B, which is y, and y is a solution of equation 2. तो फर्स्ट ए जो है वो गिवन नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनका कलेक्शन है, और जो बी सेट है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द रिड्यूसिबल एग्जैक्ट इक्वेशन. देन ऑप्शंस जो है वो क्या है? ए ऑप्शन इज ए इज कंटेन्ड इन बी. तो इसका मीनिंग क्या है? एवरी सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन. Second option, A contains B. That is, every solution of the second equation is always the solution of the first equation. Third option, A and B is the same. That is, the solution set of a first equation and second equation are same. They never change. And D option, none of these. और बेसिकली डी ऑप्शन का मीनिंग है कि देयर नो सच रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी. दैट इज ए नीड नॉट बी a subset of B, or B need not be a subset of A, or A need not be equal to B. If these all three false, then definitely D answer. तो ये क्वेश्चन है. तो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर सी देते हैं कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज सेम एज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, और एवरी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. तो सबसे पहले एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं. x dy minus y dx is equal to 0. दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन. ऑब्वियसली आप वेरीफाई कर सकते हैं दिस इज नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन. ठीक है. और अगर एक कर्व फाइंड करते हैं y of x is equal to 0 for all x belongs to R, जीरो फंक्शन, तो डेफिनेटली dy 0 y 0. तो दिस इज a solution of first equation, implies this y should be member of E. जीरो फंक्शन E का मेंबर होगा. सेकेंड इज, अगर मैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करता हूं फाई एक्स वाई विच इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज एन integrating factor of equation 1.
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रिड्यूस एग्जैक्ट इक्वेशन है x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर, दिस शुड बी जीरो एंड यहाँ y नेवर आइडेंटिकली जीरो। ठीक है, सो दिस इज द रिड्यूस इक्वेशन और y इज नेवर आइडेंटिकली जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है? तो दिस इंप्लाइज y of x is equal to 0 for all x belongs to R is not a solution of second equation. So say this one is second equation. ठीक है, तो यहां क्या हुआ? This y equal to 0 is a solution of this original non-exact equation, but it is not a solution of the reduced exact equation. ठीक है, that is this A does not contain in B. हमारे पास एक A का मेंबर मिल गया जो B में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो A डेफिनेटली B का सबसेट नहीं होगा। अब ऐसा हो इसलिए रहा है कि the domain of this differential equation, x can take any value, y can take any value. So domain of this differential equation is r cross r, पूरा r square है. But the domain of this equation is r square minus y x axis. y थ्रू आउट अगर जीरो होगा तो वो कहाँ होता है? x axis पे। तो यहाँ डोमेन आपने क्या कर दिया? यहाँ डोमेन क्या था? होल r square. देन आपने डोमेन को क्या कर दिया? श्रिंक कर दिया। तो जब भी किसी एग्जैक्ट इक्वेशन को नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट में चेंज करते हैं तो या तो डोमेन रिड्यूस होता है या डोमेन एक्सपेंड होता है या डोमेन रिमेन सेम। तो अगर आप डोमेन को रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ सॉल्यूशन जो होंगे जो ओरिजिनल इक्वेशन के होंगे जो फाइनल इक्वेशन में से रिड्यूस हो जाएंगे। ऐसा इसीलिए हुआ y इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन का डोमेन रिड्यूस हो गया तो वो जीरो सॉल्यूशन रिमूव हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। e to the power x y square d of x plus 2x upon y e to the power x y square d of y equal to 0। ठीक है, ये इक्वेशन कंसीडर करिए हमने। से दिस इक्वेशन इज 1। तो यहाँ आपके पास m की जो वैल्यू है वो e to the power x y square है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा? e to the power x y square और ये आ जाएगा 2xy और n की वैल्यू क्या है आपके पास? 2x upon y एंड e to the power x y square। तो अगर आप n of x फाइंड करेंगे तो 2 upon y e to the power x y square plus 2xy into e to the power x y square into y square। तो these both quantities are not equal, तो m of y not equal to m of x। तो that is this equation is non-exact। ठीक है, ये एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है और डेफिनेटली यहाँ एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन क्या है? y शुड नॉट बी आइडेंटिकली जीरो। अगर y जीरो हो गया तो ये इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं होगी। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ 5xy इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी? y स्क्वायर e टू द पावर x y स्क्वायर d of x प्लस 2xy e to the power x y square dy equal to 0। तो अब आपके पास ये m है और ये आपके पास अब क्या आ गया? m। और m y फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 2y e to the power x y square प्लस y square into e to the power x y square into 2xy। और n of x अगर फाइंड करते हैं तो 2y e to the power xy square, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, then 2xy remains same e to the power xy square into y square।
So these both terms are same, that is my is equal to n of x. तो this equation is say second equation और ये कौन सी equation है? Exact equation. This one should be an integrating factor. ठीक है? Now अगर मैं एक y of x is equal to 0 पिक करता हूँ for all x, तो ये टर्म 0 because y is a 0 and this term is also 0, that is 0 should be equal to 0. So this is a solution of equation 2 और obviously belonging to B set, क्योंकि B में कौन सा एलिमेंट आ गए जो reduced इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं. क्लियर? तो आपके पास y equal to 0 be a solution of this equation, but y equal to 0 is never solution of this first equation, क्योंकि y अगर थ्रू आउट 0 हो गया तो this equation is not defined. तो यहां आपके पास क्या होगा, जो आपके पास reduced exact equation है उसके पास एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल गया. ऐसा इसलिए हो रहा है, the domain of this differential equation is r square minus 0. y थ्रू आउट 0 नहीं हो सकता, यानी कि x एक्सिस रिमूव है. लेकिन जैसे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो द डोमेन ऑफ दिस इक्वेशन इज होल आर स्क्वायर. तो यहां डोमेन क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और जब भी डोमेन को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड ऑन हो सकते हैं. तो ये एग्जांपल और क्वेश्चन डिस्कस करने का मीनिंग क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन नीड नॉट बी सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन, or the solution of the second equation need not be solution of the first equation. ठीक है? तो यहाँ B option definitely false, C option false, तो D आंसर. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है D है. लेकिन इस क्वेश्चन का मोटिवेशन क्या है, रीजन क्या है डिस्कस करने का, कि अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे ये इक्वेशन है एक नॉन एग्जैक्ट फॉर्म में, जिसको हम किस में रिड्यूस कर रहे हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन. इसी तरह जब हम नॉन सेपरेबल इक्वेशन को सेपरेबल में चेंज कर सकते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे. नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में चेंज कर सकते हैं और नॉन लीनियर को लीनियर में चेंज कर सकते हैं. तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि अगर एक फॉर्म से हम किसी दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो इक्वेशन का डोमेन एक्सपेंड होगा या रिड्यूस होगा या रिमेनिंग सेम होगा. तो जब भी आपके पास डोमेन रिड्यूस होता है या एक्सपेंड होता है, तो जैसे डोमेन रिड्यूस होगा तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्टेंट इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन रिमूव हो जाए, और अगर डोमेन एक्सपेंड होगा तो हो सकता है कि रिजल्टेंट इक्वेशन में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड ऑन हो जाए. ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन दोनों के सॉल्यूशन सेम हो नहीं सकते तो आप एक नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में रिड्यूस करके सॉल्व क्यों करते हो? जब सारे सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहे हैं तो सॉल्व क्यों कर रहे हैं? सॉल्व करने का रीजन क्या है कि इफ दिस इक्वेशन इज द रिड्यूसिबल इनटू दिस इक्वेशन, देन डेफिनेटली देयर इज अ रीजन ऑन व्हिच दिस बोथ इक्वेशंस आर डिफाइंड. फॉर एग्जांपल ये r स्क्वायर माइनस x एक्सिस पे डिफाइंड है और ये भी r स्क्वायर माइनस x एक्सिस पे डिफाइंड है. तो इन दोनों का कॉमन डोमेन कौन सा है, r square minus x axis. Then the solution defined on the common domain of this equation and this equation must be same. Solution में चेंज कब होगा, जहां डोमेन या तो एक्सटेंड होगा यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट ऐड ऑन होगा, या डोमेन में से कुछ रिमूव होगा, तो उस रीजन पे जो सॉल्यूशन डिफाइन करें हैं वो इफेक्टेड होंगे, लेकिन कॉमन डोमेन पे सारे सॉल्यूशन हमेशा सेम होंगे. तो जब आप एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को एग्जैक्ट में रिड्यूस करके सॉल्व करते हो तो द रिड्यूस्ड इक्वेशन प्रोवाइड यू सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन बट नीड नॉट बी ऑल सॉल्यूशन. तो ये एक मेथड है किसी इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने का. और सिमिलरली जो आगे भी हम जितने भी मेथड पढ़ेंगे, नॉन सेपरेबल टू सेपरेबल, नॉन होमोजेनियस टू होमोजेनियस, नॉन लीनियर टू लीनियर, तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड हैं जो किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे. इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करके सारे ओरिजिनल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. उसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी दे दिया
ये एग्जांपल है कि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड ऑन हो सकते हैं, और लास्ट एग्जांपल था कुछ सॉल्यूशन रिमूव हो सकते हैं। तो फाइनल नोट क्या है इसके बारे में कि अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और उसको सोल्व करना है, ठीक है, तो आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर मेथड से ये क्लेम नहीं करोगे कि दिस इक्वेशन हैज दिस मेनी सॉल्यूशंस। आप मेथड से क्लेम नहीं करोगे एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस ऑफ दिस सॉल्यूशन। उसके लिए हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मैं बार बार रिपीटेडली बोलता हूं कि जब भी आपके पास काउंटिंग ऑफ अ सॉल्यूशन कहीं भी आएगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, या तो वो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, उसमें आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड थ्योरम्स होंगे। अगर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज ऑफ क्वेश्चन यूनिकनेस एक्जिस्टेंस चैप्टर, जो हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे गारंटी देंगे। अदरवाइज कोई मेथड नहीं है काउंटिंग ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक क्लियर टू ऑल। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके नेट-जेआरएफ, आईटी-जेएम और गेट के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आईटी-जेएम में हर साल एक क्वेश्चन आता है, नेट-जेआरएफ में इसका थ्रू आउट एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, हायर ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करेंगे, देन वी विल सॉल्व। एंड सिमिलरली गेट में भी हर सेशन में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सेगमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। So concept is first order first degree linear differential equation. So first order first degree linear differential equation. तो अगर आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखना होगा। जैसे अगर आप ओडी नेट जेआरएफ के लिए तैयार करोगे तो उसके लिए सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इसके अलावा हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, y डैश इज इक्वल टू y टू द पावर अल्फा टाइप का। तो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, या इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन से है। तो नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए होमोजेनियस, रिड्यूसिबल इनटू सेपरेबल और एग्जैक्टनेस, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। वेयरएज अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एग्जैक्टनेस का हर साल क्वेश्चन मिलेगा, सेपरेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, होमोजेनियस में रिड्यूसिबल नॉन रिड्यूसिबल पे क्वेश्चन आता है। तो देन यू हैव टू फोकस मोर ऑन दिस चैप्टर। उस केस में इस चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो योर इक्वेशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी first order, so dy by dx, and degree is 1, तो power should be 1, and extra condition क्या दे दी, linear। तो अगर हमारे पास सिंपल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता तो उस केस में किस टाइप का इक्वेशन था, this should be equal to f of xy, ठीक है। but in this case there can be term of y square, can be term of y cube, because this is a function of xy, so this is a need not be linear। तो इसको लीनियर बनाने के लिए जो y की पावर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 1। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, दैट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर एंड इट्स पावर इज 1 प्लस देयर इज लीनियर टर्म ऑफ y, तो सम फंक्शन ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू सम सिंपली फंक्शन ऑफ x। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सिंपल, वेयर p and q are any two functions। और इसी तरह इफ योर इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म mxy dx प्लस mxy dy इक्वल टू 0, और अज्यूम करते हैं कि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So what is the necessary and sufficient condition such that this is a linear equation? So this equation is linear differential equation if and only if, linear का मीनिंग क्या था, all the derivative and dependent variables should be of degree 1 and there does not exist any product term of the derivative and its
डिपेंडेंट वेरिएबल और मोर देन 2 डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इन दिस केस dy is representing derivative because y is a dependent, so there does not exist any term of y, otherwise there is a product term of y and its derivative. तो सबसे पहले जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम y, ठीक है। सो n is free from y. Second, m of xy, so ये फंक्शन ऑफ x एंड y है। अगर ये y में लीनियर नहीं हुआ, if this is not linear in y, तो डेफिनेटली नॉन लीनियर इक्वेशन। तो सेकंड कंडीशन इज m is linear in y. So this is the necessary and sufficient condition. So this equation is a linear differential equation if and only if m is free from y or n is free from y or m is linear in y. सिंपल कैलकुलेशन। अब आता है क्वेश्चन कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d of y प्लस p of x into y minus q of x whole into dx is equal to 0। इसके इक्विवेलेंट ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इन दिस इंप्लाइज जो आपके पास m की वैल्यू है दैट इज p of x into y minus q of x, ठीक है। और जो n की वैल्यू है m dx plus n dy से कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अब अगर आप my minus nx अपॉन n कैलकुलेट करते हो तो my बेसिकली p of x आएगा, n of x 0 हो जाएगा अपॉन 1, तो विच इज p of x दैट इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। और अगर ये एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ x ओनली है तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ px dx इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। तो गारंटी है कि दिस फंक्शन मस्ट बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। और अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर p dx into dy by dx प्लस p into e to the power p dx whole into y is equal to q into e to the power integral p dx और माइनस q p of dx is equal to 0, ये लिख सकते हैं। So definitely this whole equation should be exact equation, और अगर ये exact equation है तो there exists a function f of xy such that whose total derivative equal to this expression। तो basically इसको हमें ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करना है जो किसी एक फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ y into e to the power integral p dx minus integral q e to the power integral p dx is equal to 0। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y करेंगे तो dy by dx और दिस टर्म रिमेन सेम, देन इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो y रिमेन सेम और इसका डेरिवेटिव e टू द पावर p dx into p। तो इन दोनों टर्म्स को यहां कंबाइन कर दिए, ठीक है। एंड ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव गेट कैंसिल आउट, तो फाइनली दिस एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास क्या मिल गया f of xy is equal to 0। तो दिस इंप्लाइज f of xy is equal to c is a solution और दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। और ये जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फिर y into e to the power p dx minus q integral q e to the power p dx dx equal to c। तो फाइनल सॉल्यूशन इज y e to the power p time dx is equal to integral q e to the power integral p dx whole integral dx plus arbitrary constants। So this is the
जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट? तो हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर आपके पास दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दिस इंप्लाइज e to the power integral p dx is an integrating factor, first concept. Second, and general solution is y time e to the power integral p dx is equal to integral q e to the power p dx whole integral dx plus c। तो ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन है। जल्दी जो आप याद करके आते हैं कि अगर कोई आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा, और बेसिकली y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रल q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये आपको जनरल सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। इफ y of x be a solution of dy by dx plus 2xy is equal to e to the power minus x square with a condition y at 0 equal to 0। ठीक है, 0 पे 0। then first option, this y of x tends to plus infinity as x tends to plus infinity। second option, this y of x is bounded on 0 to infinity। third option, y of x is unbounded on 0 to infinity। और D, y of x tending to 0 as x tends to plus infinity। तो ये इस टाइप के कुछ ऑप्शन। तो बेसिकली इस सेगमेंट में आपका जो टास्क है वो सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं है। आपका टास्क स्टार्ट होगा सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद बेसिकली सॉल्यूशन को एनालाइज करना कि उस सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या है, वो सॉल्यूशन कहाँ डाइन कर रहा है, और उसके बारे में प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है आपको। जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप डायरेक्टली इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो हम सॉल्यूशन क्या आ रहा है वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन आने के बाद उसको एनालाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑप्शन इस टाइप के होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू द पावर प्लस px 2x dx, so which is e to the power x square। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो दिस इंप्लाइज जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या जाएगा? y into e to the power x square is equal to integral e to the power minus x square into e to the power x square whole integral dx plus arbitrary constant c। सिंपल वैल्यूज पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में। तो दिस इंप्लाइज y into e to the power x square और दिस इज x plus c। तो फाइनल जो सॉल्यूशन आ गया आपके पास वो क्या गया? y of x is equal to x plus c e to the power minus of x square, और आपको y at 0 क्या दिया हुआ है? 0। तो दिस implies c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो दिस implies y of x जो आएगा that is x time e to the power minus of x square। ये आपके पास सॉल्यूशन। अब इसको एनालाइज करना है कि इस सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा। तो अब इसको एनालाइज करना है कि इस सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा। तो फर्स्ट अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इसको अज्यूम कर सकते हैं e टू द पावर माइनस टी, और जो t है विच इज एक्स स्क्वायर। तो इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर x इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो t इन्फिनिटी, और t इन्फिनिटी पे जाएगा तो e टू द पावर माइनस टी वो कहां जाएगा, जीरो की तरफ। तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस फंक्शन टेंड्स टू जीरो, और जीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। अगर x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो t प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि x स्क्वायर है, और t अगर प्लस इन्फिनिटी पे तो e टू द पावर माइनस टी अगेन जीरो पे। तो व्हेनेवर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगेन कहां जाएगा, जीरो पे। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का था। तो दिस इज ग्राफ ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि yx टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस y ऑफ x को या तो आप एक्सपेंड कर लो, x इनटू दिस इज 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म कहां जा रही है, प्लस इन्फिनिटी, सेकंड टर्म कहां जा रही है, माइनस इन्फिनिटी, थर्ड टर्म कहां जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। तो डायरेक्टली यहां से कैलकुलेशन नहीं आ सकती। दूसरा मेथड, अगर मैं इसको लिखता हूं x e टू द पावर x के, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे दिस क्वांटिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये भी कहां जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो एल होस्पिटल रूल से दिस इज सेम एज 1 अपॉन 2x e टू द पावर x स्क्वायर। अब अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो दिस इज प्लस इन्फिनिटी, दिस इज आल्सो प्लस इन्फिनिटी, तो ओवरऑल क्वांटिटी कहां जाएगी, जीरो पे। तो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो आपका y ऑफ x है वो कहां टेंड कर रहा है, जीरो पे। क्लियर? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स और फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर ये फंक्शन डिफाइन किया गया है तो डेफिनेटली दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो जो आपका y ऑफ x है which is x टाइम e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर, this is a differentiable and continuous on 0 to infinity, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, y ऑफ x कहां टेंड कर रहा है, जीरो पे। तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज बाउंडेड, क्योंकि इन्फिनिटी पे लिमिट फाइनाइट है और जीरो पे भी लिमिट फाइनाइट है और कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो B अगर ट्रू है तो C ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सेगमेंट में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं विच इज योर होमवर्क, जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन इज dy by dx plus 2x plus 1 by x whole into y is equal to e to the power minus of 2x with condition y at 0 equal to 0. ठीक है, then first option और yx भी आ solution of differential equation, yx इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन y of x is bounded on 0 to infinity. Second option y of x is unbounded on 0 to infinity. Third option y of x tends to 0 as x tends to plus infinity, and D is y of x is monotonic function
ऑन 0 to ∞। तो ये ऑप्शन आपको वेरीफाई करने हैं। जब भी आपके पास मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन आएगा तो वो डेरिवेटिव से रिलेट करोगे कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। इफ dy by dx plus p of x into y is equal to qx, be a first order first degree linear differential equation। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो p और q पे क्या कंडीशन है कि दिस इक्वेशन ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। p और q पे क्या कंडीशन है कि दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो जब हमने इसके सॉल्यूशन की बात करी तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वो किस टाइप का था, y of x into e to the power integral p dx is equal to the integral of q e to the power integral p dx whole integral dx plus this। if solution of this equation exists तो डेफिनेटली सॉल्यूशन इस टाइप का आएगा। और ये एक्सप्रेशन डिफाइन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन शुड बी p इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। तो जिस भी डोमेन पे आप सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें p को क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल। और सेकंड कंडीशन q इंटू e टू द पावर, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल। तो q इंटू e टू द पावर p dx is also integrable function। ठीक है, तो if this function and this function are integrable function then this differential equation must have a solution। clear? तो यहां q की इंटीग्रेबिलिटी जरूरी नहीं है। हम राइट डाउन क्या कर रहे हैं, p should be integrable और q into this expression is an integrable, then this equation has a solution। for example अगर सिंपल इक्वेशन लिखते हैं dy by dx plus y equal to, और जैसे अभी हमने सॉल्व किया -2 of x y equal to e to the power x square, और अज्यूम कर लेते हैं कि x belonging to whole real line। तो आप इंटीग्रेबिलिटी के कंसेप्ट से ये डिस्कस कर सकते हैं कि e to the power x square is a non-integrable। So e to the power x square is non-integrable function on R। बस रीमान इंटीग्रेबिलिटी और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है कि e to the power x square there does not exist any function whose derivative equal to this function। So this expression is non-integrable on real line। ठीक है, तो ये आपके पास q of x है, बट जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, e to the power -2 x dx that is e to the power minus of x square। और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power minus x square equal to q e to the power x square into e to the power minus x square dx। जो जनरल एक्सप्रेशन है दिस वन प्लस c, तो विच इज इक्वल टू y e to the power minus x square integral dx plus c implies y e to the power minus x square equal to x plus c, यानी कि दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो आपके पास जो q of x है दिस इज नॉट एन इंटीग्रेबल फंक्शन बट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात करेगा तो p मस्ट बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन बट q नीड नॉट बी इंटीग्रेबल फंक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, say one, the first order
first degree linear differential equation 1 has a solution if P is an integrable and this expression should be integrable on some domain D. The equation this has a solution if a P is an integrable and Q into this expression is an integrable on some domain D. Clear? Second statement. The integrability of this Q function, not necessarily for existence of the solution of this first equation. The integrability of Q function not necessary to existence of the solution of this first equation, but P should be इंट्रीगेबल फंक्शन. ठीक है. और आप एनालिसिस में पढ़ेंगे अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, तो डेफिनेटली वो एक इंट्रीगेबल फंक्शन होगा. या कंटिन्यूअस फंक्शन है रियल लाइन पे तो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी ना किसी डोमेन पे इंट्रीगेबल होगा. और अगर इंट्रीगेबिलिटी आ जाएगी तो डेफिनेटली सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट. तो व्हेनेवर, next statement, whenever this P and Q are continuous function and define on some closed interval, if P and Q are continuous function and define on some closed interval or on a compact set, then they must be integrable, implies equation 1 must have a solution. Whenever P and Q are integrable function, P and Q are continuous function defined on some closed interval or on a compact set, then P and Q must be integrable or implies this equation 1 has a solution. So this is the sufficient condition, not necessary. बाकी कंडीशन आप रीमान इंटीग्रेबिलिटी में पढ़ेंगे. अगर फंक्शन के पास कुछ फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो भी वो इंटीग्रेबल हो जाता है. सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का अगर मेजर 0 हो जाए तो भी वो इंटीग्रेबल हो जाता है. तो ये सारे कंसेप्ट आपके रीमान इंटीग्रेबिलिटी के हैं. तो आई थिंक क्लियर कि दिस इक्वेशन मे हैव अ सॉल्यूशन व्हेनेवर q इज नॉट इंटीग्रेबल, और p and q बोथ आर इंटीग्रेबल, देन दिस इक्वेशन मस्ट हैव अ सॉल्यूशन. ठीक है. और if P and Q are continuous and defined on closed interval or a compact set, then definitely P and Q are integrable and this equation has a solution. तो इसका आपका लिंक तभी होगा जब आप रीमान इंटीग्रेबिलिटी पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम फॉर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन, which is called fundamental theorem of first order first degree linear differential equation. Important concept है. The fundamental theorem of a first order first degree linear differential equation. So if dy upon dx plus p of x into y is equal to qx, be a first order first degree linear differential equation. Okay. Statement क्या है इस थ्योरम का? If this equation be a first order first degree linear differential equation, then and it has a solution. इसके पास कोई ना कोई solution exist कर रहा है. Then it has a unique solution such that y at alpha equal to some beta. It has a solution, then it must have a unique solution with condition the value of a solution at alpha equal to beta for any alpha beta belongs to R, provided P and Q are
कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम का मीनिंग है द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if it has a solution then that solution must be unique solution which passes through alpha comma beta। अल्फा पे वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की बीटा। तो द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट हैज अ सॉल्यूशन then that solution must be unique solution passing through alpha beta provided p and q are continuous। so this is called fundamental theorem for first order linear differential। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बेस पे ये प्रूफ हो जाएगा। बट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कुछ इस टाइप का आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप का है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x माइनस और माइनस 2x माइनस 1 y is equal to say 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। देन ऑप्शन दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन such that y at 0 equal to 0। second, no solution such that y at 0 equal to 1। unique solution such that y at 2 equal to 3। no solution or infinite solution such that y at 1 equal to 1। तो इस टाइप के कुछ ऑप्शन है। क्लियर? तो अगर यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस और माइनस साइन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल इनटू y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। whether these both equation are equivalent or not। इस इक्वेशन को हमने इसमें लिख लिया, तो क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम फॉर्म है? दिस इक्वेशन इज डिफाइंड फॉर एवरी x। x कैन बी 0 एंड x कैन बी 1 और x कैन बी एनी रियल नंबर, बट दिस इक्वेशन नॉट डिफाइंड एट 0 एंड 1। तो इन दो पॉइंट के अलावा बाकी हर पॉइंट पे ये सेम है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या आता है उस पर भी आते हैं। तो यहां आपके पास p ऑफ x क्या आ गया माइनस टाइम 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और q ऑफ x ऑब्वियसली 0 फंक्शन है। तो ये डेफिनेटली कंटीन्यूअस फंक्शन है, बट दिस इज नॉट अ कंटीन्यूअस फंक्शन। और कहां कंटीन्यूअस नहीं है? एट 0 एंड 1। 0 और 1 पे डिनोमिनेटर क्या होगा? 0। तो दिस p फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस फंक्शन है एट 0 एंड 1। और आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो 0 पे दिए हुए हैं और कुछ ऑप्शन है जो 1 पे दिए हुए हैं और एक ऑप्शन है जो 2 पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, आपके पास ऑप्शन का दिया हुआ है 2 पे एंड इन द नेबरहुड ऑफ 2 दिस p इज अ कंटीन्यूअस एंड q इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। और सिंपली यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फाइंड कर सकते हैं? e टू द पावर माइनस ऑफ 2x minus 1 upon x square minus x dx, तो which is equal to 1 upon x square minus x। बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और अज्यूम कर रहा हूं कि सबको आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, बस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। तो दिस इज e टू द पावर माइनस log of x square minus x। तो फाइनली दिस वन। और अगर ये क्वांटिटी है तो सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q फंक्शन क्या है? 0। तो फाइनली क्या रहेगा? c। तो हम y ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? c टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज योर सॉल्यूशन।
ठीक है, यानी कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अब अगर P और Q कंटीन्यूअस हो जाए, जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है y एंड 2 इक्वल टू 3, तो इस 2 के नेबरहुड में P एंड Q बोथ फंक्शन आर कंटीन्यूअस। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि इफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन and P and Q are continuous function, then there is a unique solution such that y at alpha equal to beta, यानी कि अल्फा के नेबरहुड में अगर कंटिन्यू किया जाए तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन विद दिस कंडीशन। तो फंडामेंटल थ्योरम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू। बट ऑप्शन ए, बी और डी में जो कंडीशन दी हुई है 0 पे या 1 पे, और 0 और 1 पे आपका P फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, तो उस केस में आपको वैल्यूज पुट करनी, और अगर C की यूनिक वैल्यू मिलेगी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जैसे हमने y एट 0 इक्वल टू 0 पुट किया, तो दिस क्वांटिटी इज 0 और ये क्वांटिटी भी क्या है 0, तो C आप कुछ भी पिक करो, दिस इज अ सॉल्यूशन व्हिच पासिंग थ्रू 0, 0 फॉर एवरी C। तो C के लिए कितनी चॉइसेस हैं? इनफाइनाइट। तो जब भी आपके पास कंडीशन है y एट 0 इक्वल टू 0, देन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स। इसी तरह तो इस केस में आपके पास सॉल्यूशन जो आएंगे वो कितने आएंगे? इनफाइनाइट। इसी तरह अगर y एट 1 इक्वल टू 0 कर दे, सेकंड कंडीशन, तो ये क्वांटिटी 0 और ये क्वांटिटी 0, तो C अगेन करेगा आर्बिट्रेरी, तो इस केस में भी फिर क्या रहेगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं y एट 0 इक्वल टू सम अल्फा कर दूं और अल्फा नॉन जीरो कर दूं, तो उस केस में ये राइट हैंड साइड क्या आएगी? अल्फा, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? 0। तो 0 इक्वल टू सम नॉन जीरो क्वांटिटी व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो इस केस में क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। और सिमिलरली y एट 1 इक्वल टू सम अल्फा करते हैं और अल्फा अगेन नॉन जीरो, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0, बट ये क्वांटिटी हम क्या ले रहे हैं? अल्फा व्हिच इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो वैल्यू इक्वल टू 0, तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, तो नो सॉल्यूशन। तो बेसिक आइडिया लीनियर इक्वेशन का, तो अगर आपके पास all the coefficient are continuous function and a differential equation has a solution, then for any alpha and beta there is a unique solution such that y at alpha equal to beta। फर्स्ट कंसेप्ट ये है। और अगर P और Q एक भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए, तो देन आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, then the possible number of values of C is always representing the number of solution of this equation। जैसे y00 के लिए C आर्बिट्रेरी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, y10 के लिए C आर्बिट्रेरी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इन दोनों केस में C एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देन इट मस्ट बी नो सॉल्यूशन। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स, सेकंड ऑप्शन y एट 0 इक्वल टू 1, तो नो सॉल्यूशन, तो करेक्ट ऑप्शन, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन y एट 1 इक्वल टू 1, तो y एट 1 नॉन जीरो क्वांटिटी होते ही नो सॉल्यूशन, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? B एंड C। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम में अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन आता है तो एक ऑप्शन जनरली जो होता है वो फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड होता है, और रिमेनिंग ऑप्शन पे आपका P और Q में से कोई एक फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आई थिंक क्लियर। सुनिए क्वेश्चन लिखते हैं व्हिच इज फ्रॉम NetJRF। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज y is a continuous function, y एक continuous function है, and solution of initial value problem। अभी मीनिंग बताते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है? such that y dash plus 2y is equal to f of x with condition y at 0 equal to 0। तो any differential equation with condition y at alpha equal to some beta, तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए,
that equation is called an initial value problem, or this alpha is called initial point. और इसी तरह अगर दो पॉइंट के बीच में कंडीशन लगा दीजिए अल्फा और गामा के, y at alpha equal to some beta और y at gamma equal to some delta, तो that is called a boundary problem और boundary value problem. ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मीनिंग है कि किसी एक इनिशियल पॉइंट पे आपको कंडीशन, तो यहाँ आपके पास y डैश प्लस 2y इक्वल टू fx और y at 0 इक्वल टू 0, दैट इज दिस इज अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. और fx जो फंक्शन है दैट इज 1 whenever 0 is less than or equal to x less than 1 or less than or equal to 1 or 0 whenever x greater than 1. ठीक है, देन आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है y at 3/2. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, इट इज अ साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन e क्यूब. सेकेंड ऑप्शन इज cos hyperbolic 1 upon e cube. Third option is sin hyperbolic 1 upon e square, and fourth option is cos hyperbolic 1 upon e square. तो y at 3/2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब आपके पास यहाँ p of x is 2 which is a continuous function और q of x is fx जो एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है. तो आप जब रीमान इंटीग्रेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि इफ अ फंक्शन हैज सम फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देन इट मस्ट बी रीमान इंटीग्रेबल और इंटीग्रेबल फंक्शन. तो इस fx के पास ओनली एक 1 पे डिसकंटिन्यूअस है. 1 के लेफ्ट से जाओगे तो वैल्यू क्या दे रहा है 1 और 1 के राइट से जाओगे तो वैल्यू क्या दे रहा है 0. तो दिस f हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो डेफिनेटली ये f रीमान इंटीग्रेबल होगा और f इंटीग्रेबल फंक्शन होगा और px ऑलरेडी इंटीग्रेबल है. और अगर ये दोनों इंटीग्रेबल है तो दिस इक्वेशन मस्ट हैव अ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? तो फर्स्ट व्हेनेवर x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 1, तो उस केस में fx आपके पास क्या है 1, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी y डैश प्लस 2y इक्वल टू 1. और जब आपके पास x ग्रेटर देन 1 है तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0. और दोनों केसेस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर बात करेंगे तो e टू द पावर 2x और यहां भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x. क्लियर? e टू द पावर इंटीग्रल px dx. तो यहां फर्स्ट केस में जो जनरल सॉल्यूशन आएगा y इनटू e टू द पावर 2x इज इक्वल टू q1 है और e टू द पावर 2x dx प्लस सम c1. तो y e टू द पावर 2x 1/2 e टू द पावर 2x प्लस c1. तो यहां से y ऑफ x क्या है 1/2 प्लस c1 e टू द पावर -2x. क्लियर? और x कहां से बिलोंग कर रहा है क्लोज 0 1. और आपके पास जो कंडीशन है y at 0 इक्वल टू 0, तो x 0 बिलोंग कर रहा है तो यहां हम कंडीशन इंपोज कर सकते हैं y at 0 इक्वल टू 0. तो c1 का जो वैल्यू आ जाएगा दिस वैल्यू 0 1/2, तो c1 आपके पास -1/2. तो फाइनली y ऑफ x जो आ गया वो क्या आ गया आपके पास 1/2 कॉमन आउट 1 माइनस e टू द पावर -2x. ये फिक्स हो गया. अब अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो वही y e टू द पावर 2x, q फंक्शन 0 है तो इक्वल टू सम c2, तो y ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा c2 e टू द पावर 2x, वेयर c2 इज आर्बिट्रेरी. तो यहां फर्स्ट जो ये कंडीशन गिवन है ये उसी डोमेन पे अप्लाई करोगे जिसमें ये x बिलोंग कर रहा है. तो x कहां से बिलोंग कर रहा है 0 से. तो फर्स्ट रीजन पे ये कंडीशन इंपोज होगी, सेकंड रीजन पे इंपोज नहीं होगी क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, बट इन दिस कंडीशन x इज 0. तो आपके पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ गया
y of x, वो क्या डिफाइन हो गया? 1/2 1 minus e to the power minus of 2x whenever x belonging to close 0 1, or e to the power minus 2x into c2 whenever x belonging to or x is greater than 1. अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है y should be a continuous function. ठीक है, तो आपका इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 1 पे चेंज हो रहा है, तो इसकी जो कंटिन्यूटी है डेफिनेटली x अगर 1 से लेस है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 1 है तो ये कंटिन्यूअस है, तो आपको प्रॉब्लम कहां सकती है? सिर्फ 1 पे. तो दिस y इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट 1 पे आपके पास क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शन. और अगर 1 पे कंटिन्यूअस है तो दैट इज अ लिमिट x tends to 1 minus left hand limit of y should be equal to right hand limit of y, or it should be equal to value of the function. तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आएगी? इस केस से. तो दिस इज 1/2 1 minus e to the power minus 2, x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और दिस लिमिट c2 e to the power minus 2. तो थ्रू आउट e to the power minus 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c2 क्या आ जाएगा? 1/2 e to the power, और e to the power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा. यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन आया और वो जो कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो y of x is equal to 1/2 टाइम 1 minus e to the power minus 2x whenever x belonging to 0 to 1, और सेकेंड इज c2 का वैल्यू 1/2 e square minus 1 into e to the power minus of 2x whenever x is greater than 1. और आपको जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो कहां फाइंड करनी थी? y at 3/2. तो y at 3/2 क्या देगा? 1/2 इस रीजन से फाइंड होगी e square minus 1 into e to the power minus 3. तो इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं 1/2 e to the power minus 1 मल्टीप्लाई कर देता है e minus e इनवर्स अपॉन e स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है? साइन हाइपरबोलिक 1. जो साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है? e to the power x minus e to the power minus x by 2 into e स्क्वायर. तो ये आपका फाइनल ठीक है. तो जब भी आपके पास fx या gx में से एक भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस गिवन है तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है. क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है. या कुछ और एक एनालिसिस लिखते हैं. तो विच इज योर, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपको एनालाइज करवाएंगे. dy by dx plus a of y is equal to e to the power minus of lambda of x, और e to the power lambda x, और कंडीशन दे देते हैं y at 0 equal to 0. और यहां जो a एंड लैम्डा है वो क्या है? रियल नंबर है, और a नॉट इक्वल टू लैम्डा लिखते हैं. ठीक है. तो आपके पास जो ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ इस टाइप के हो सकते हैं. इफ a greater than 0 and lambda greater than 0, then y of x tends to plus infinity as x tends to plus infinity. कुछ इस टाइप का ऑप्शन. a और लैम्डा अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो yx है वो कहां टेंड करेगा? प्लस इन्फिनिटी पे as x tends to infinity. b ऑप्शन, if a greater than 0 lambda greater than 0, then y of x tends to 0 as x tends to plus infinity. Similarly c, if a less than 0 lambda greater than 0, then y of x is bounded on R, or D से none of these. तो यहाँ कुछ
रैंडम ऑप्शन लिखें। आपके पास ऑप्शन कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास ए में कंडीशन हो सकती है ए ग्रेटर देन 0, ए कैन बी 0 और ए कैन बी लेस देन 0। तो ए के लिए 3 चॉइसेस दे सकता है वो। इसी तरह लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा कैन बी 0 और लैम्डा लेस देन 0। तो 3 चॉइसेस लैम्डा के लिए हो सकती है। और देन आपसे पूछा जा सकता है कि x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो yx का बिहेवियर क्या होगा। तो ऑप्शन दे सकता है yx कैन टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, yx कैन टेंड्स टू 0 और yx कैन टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। और x 0 पे भी टेंड करवा सकता है और प्लस माइनस इंफिनिटी पे भी। तो बेसिकली ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि a ग्रेटर देन 0 लैम्डा 0 एज x टेंड्स टू 0 yx टेंड्स टू 0। तो हमारे पास x के लिए यहाँ एटलीस्ट 3 चॉइसेस, y के लिए एटलीस्ट 3 चॉइसेस, लैम्डा के लिए 3 चॉइसेस, a के लिए 3 चॉइसेस। तो टोटल 12 चॉइसेस हैं और मुझे 4 ऑप्शन बनाने हैं। तो 12 में से कोई भी 4 कंडीशन की करेंगे तो दैट इज 12C4। मैं एटलीस्ट इतने क्वेश्चन यहां से बना सकता हूं। तो यहां क्वेश्चन की कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप जनरल कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ a के लिए 3 चॉइसेस हैं और लैम्डा के लिए 3 चॉइसेस, x की 3 चॉइसेस और y की 3 चॉइसेस। और उसके अलावा यहाँ भी वो चेंज कर सकता है y एट अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा पॉजिटिव, अल्फा बीटा नेगेटिव। तो क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं। बट अगर आपको जनरल कंसेप्ट समझ आ गया कि इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है तो आप किसी भी टाइप का ऑप्शन हो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट सॉल्व करता हूं, ऑप्शन आप खुद वेरीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ a dx विच इज e टू द पावर a ऑफ x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, वेट, इसको आप माइनस साइन के साथ, ठीक है, प्लस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। देन सॉल्यूशन क्या आएगा, y into e to the power ax is equal to e to the power a minus lambda of x d of x plus some arbitrary constant c। जस्ट जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो यूज कर रहे हैं। तो y into e to the power ax is equal to, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a minus lambda e to the power a minus lambda of x plus c1 और c। तो y of x आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस लैम्डा e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा x प्लस c टाइम e टू द पावर माइनस ऑफ x। ठीक है, और जैसे y एट 0 इक्वल टू 0 कंडीशन पुट करेंगे, जैसे y एट 0 इक्वल टू 0 कंडीशन पुट करेंगे तो फंडामेंटल थ्योरम से px इज अ कांस्टेंट वैल्यू और qx is e to the power minus lambda x। तो p and q both are continuous function and this equation has a solution। तो इस 0 0 से पास होने वाले कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो y at 0 equal to 0 पुट करेंगे तो दिस क्वांटिटी 1 upon a minus lambda, दिस इज c और ये क्वांटिटी 0, तो c इक्वल टू आ जाएगा -1 upon a minus lambda। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ गया यहां से c की वैल्यू पुट करने के बाद, तो y of x इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस लैम्डा कॉमन आउट आ गया इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा x एंड ये माइनस साइन के साथ e टू द पावर माइनस ऑफ x। ये आपके पास सॉल्यूशन है और ये कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है a नॉट इक्वल टू लैम्डा, अदरवाइज ये डिनोमिनेटर डिफाइन होगा। अगर a इक्वल टू लैम्डा है तो आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं जब a ग्रेटर देन 0 है और लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा x एज x टेंड्स टू इंफिनिटी पे बात करते हैं तो e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा x, तो माइनस लैम्डा नेगेटिव हो गया, तो ये बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो e टू द पावर माइनस x। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये कहां जाएगा, 0 पे,
और सिमिलरली e टू द पावर माइनस ऑफ ax ये भी कहां जाएगा 0 पे, तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन a माइनस लैम्डा इनटू e टू द पावर माइनस लैम्डा x e टू द पावर माइनस ax ये कहां टेंड करेगा 0 पे। तो एज a पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव और x टेंड्स टू इंफिनिटी तो yx कहां जा रहा है 0 पे। क्लियर। यहां जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो ये है, अगर a ग्रेटर देन 0 लैम्डा ग्रेटर देन 0 और एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी तो उस केस में yx का क्या बिहेवियर होगा। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ yx इफ दिस कंडीशन होल्ड। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो अगेन एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे e टू द पावर माइनस लैम्डा x डेफिनेटली कहां टेंड करेगा प्लस इंफिनिटी। जस्ट e टू द पावर माइनस लैम्डा x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और सिमिलरली e टू द पावर माइनस ऑफ ax ये भी कहां टेंड करेगा प्लस इंफिनिटी पे। तो आपके पास ये क्वांटिटी प्लस इंफिनिटी पे जा रही है, ये क्वांटिटी प्लस इंफिनिटी पे जा रही है, तो डिफरेंस के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है। तो यहां दो केस कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट लैम्डा अगर ग्रेटर देन a है, लैम्डा अगर ग्रेटर देन a है तो उस केस में जो y ऑफ x विच इज 1 अपॉन a माइनस लैम्डा उसमें से e टू द पावर माइनस लैम्डा x हम कॉमन आउट ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ ax देन इनटू e टू द पावर लैम्डा x ये बच जाएगा। आप e टू द पावर माइनस ax भी कॉमन आउट ले सकते हैं। 1 अपॉन a माइनस लैम्डा e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा x ये 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा माइनस a ऑफ x। लैम्डा ग्रेटर देन a है तो लैम्डा माइनस a ग्रेटर देन 0, लैम्डा माइनस a ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर लैम्डा माइनस a ऑफ x। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये बिहेवियर करेगा e टू द पावर x टाइप का, और x कहां जा रहा है आपके पास माइनस इंफिनिटी, तो ये क्वांटिटी कहां जाएगी 0 पे। तो दिस क्वांटिटी टेंड्स टू 0, और अगर ये 0 पे जा रहा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कहां चला गया 1 पे, और x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये क्वांटिटी कहां जा रहा है प्लस इंफिनिटी पे, और लैम्डा ग्रेटर देन a है तो a माइनस लैम्डा, तो आपके पास ये 0 पे जा रहा है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी फिर कहां टेंड कर गया 1 पे, और ये कहां जा रहा है आपके पास प्लस इंफिनिटी पे। अगर ये साइन पॉजिटिव हो गया तो प्लस इंफिनिटी पे चले जाएंगे, और ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो कहां चले जाएंगे माइनस इंफिनिटी पे। नाउ लैम्डा ग्रेटर देन a है तो लैम्डा माइनस a पॉजिटिव तो a माइनस लैम्डा शुड बी नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी क्या है आपके पास नेगेटिव। तो दिस इंप्लाइज जो y ऑफ x है वो कहां टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी पे एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी जब लैम्डा ग्रेटर देन a है। तो इस टाइप का ऑप्शन हो सकता है कि इफ लैम्डा ग्रेटर देन a एंड लैम्डा एंड a बोथ आर पॉजिटिव देन एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी yx टेंड्स टू, तो yx कहां टेंड कर रहा है माइनस इंफिनिटी। सेकंड सिचुएशन, तो जब लैम्डा लेस देन a है सेकंड केस, तो अगेन इस yx को फिर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस लैम्डा। इस केस में e टू द पावर माइनस ax कॉमन आउट ले लो, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा x इनटू e टू द पावर ax माइनस 1, ठीक है, which is 1 upon a minus lambda e to the power minus of ax e to the power a minus lambda of x minus 1। अब a माइनस लैम्डा जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो e टू दी पावर a माइनस लैम्डा ऑफ x इस टाइप का बिहेवियर करेगा e टू दी पावर x टाइप का, और x कहां जा रहा है माइनस इंफिनिटी पे, तो ये क्वांटिटी कहां जाएगी 0 पे।
तो दिस क्वांटिटी टेंड्स टू 0, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी को अटेंड करेगी माइनस इन्फिनिटी, ये सॉरी -1, और दिस क्वांटिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और a माइनस लैम्डा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू कहां जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पे, और ये कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट yx कहां टेंड करेगा फिर, माइनस इन्फिनिटी, एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहां क्या प्रूफ हुआ, जब भी a और लैम्डा दोनों पॉजिटिव हैं, लैम्डा ग्रेटर देन a हो या लैम्डा लेस देन a हो, yx must be tends to minus infinity as x tends to minus infinity। तो इस टाइप का आपके पास बिहेवियर चेक करना है, ठीक है। तो मैं एक फ्लो चार्ट लिख रहा हूं जिसको आपको कंप्लीट करके लाना है पूरे क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का। तो इफ योर इक्वेशन इज y डैश plus a of y is equal to e to the power minus of lambda x with condition y at 0 equal to 0 और a not equal to lambda, ये कंडीशन है। और फर्स्ट केस a not equal to lambda दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट डिस्कस करना है। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड लैम्डा ग्रेटर देन 0, देन y of x tends to, as x tends to infinity, as x tends to minus infinity। तो आपको इस yx का बिहेवियर चेक करना है फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में, इफ a ग्रेटर देन 0 and lambda less than 0, so the behavior of a y of x or y of x tends to, again as x tends to plus infinity or x tends to minus infinity, ठीक है। थर्ड, if a less than 0 and lambda greater than 0, then आपके पास behavior of a yx as x tends to plus infinity or as x tends to minus infinity। And fourth case, if a less than 0 and lambda also less than 0, so behavior of a yx as x tends to plus infinity or x tends to minus infinity। तो ये चारों सिचुएशन। And next case is if a equal to 0 and lambda is positive, so the behavior of a yx as x tends to plus infinity or x tends to minus infinity, a equal to 0 and lambda positive, then behavior of yx as x tends to infinity or x tends to minus infinity। And next one is if a is a positive और lambda 0, a positive और lambda 0 है, तो behavior of a yx as x tends to plus infinity and x tends to minus infinity। तो ये सारी सिचुएशन आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। और फाइनल केस, if a equal to lambda हो जाए, अगर a इक्वल टू लैम्डा है और a ग्रेटर देन 0 है, तो बिहेवियर ऑफ yx as x tends to plus infinity और x tends to minus infinity। सिमिलरली a जब लेस देन 0 है तो आपको सेम सिचुएशन डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये सारे केस आप कंप्लीट करेंगे। In next lecture we will complete this and then discuss करेंगे the reducibility of non-linear differential equation into linear differential equation और some of the concept with respect to homogeneous differential equation and separable differential equation और the reducibility into homogeneous or non-homogeneous।
Thank you.